students, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today I am going to teach your chapter number 1 from Behave textbook, The Fun They Had, which is very interesting. And in this scenario, in this period, this chapter will be very much exciting for all of you to learn. So please go through this entire video, and at the end of the video, please do like, share, comment, and please do not forget to subscribe my channel, and please press the bell icon so that you do not miss any kind of video. Thank you very much. So chapter number 1, each and every students, The Fun They Had, chapter 9, the English book, Behave. Okay, The Fun They Had is a story which is written इन फ्यूचर. जैसे आप लोग 2050 हो गया, 3000 हो गया, ठीक है, ये स्टोरी 150 इयर्स बाद में अगर कोई है जिंदा, ठीक है, तब लिखी गई है. What this story wants to say that in future you people don't have to visit schools as of आप लोग अभी भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, पिछले 2 साल से तो. एंड ठीक है, वो जो बच्चे हैं, आप लोग जो है, जो जितना आप लोग अपनी स्कूल को राइट नाउ मिस कर रहे हो, वो 150 साल बाद, आफ्टर 150 इयर्स, वो लोग ये सारी चीज, द स्कूल विच वी हैड, राइट, व्हाट is the purpose of going to school and how we do all kinds of fun in the school, they are missing in they will be missing after this 150 years. Okay, so after 150 years, 200 years, everything will get changed. There will be no human teachers like us. Then what will be there? Then you have to learn through computers. Straight away you will be given textbook on computer and you have to read it, or you will be having a virtual classroom. Now, what do you mean by virtual classroom? That means you will be having amples of computers around you. Okay, numbers of computers around you. You will have one subject flashing on one board. You will have another subject flashing on another board. Okay, then you can have a robotic teacher, right? Not human being, but a robotic teacher. Or you can also have moving e-text. What do you mean by word moving e-text? यहाँ पे लिखा है moving e-text, ठीक है. न्यूज चैनल्स देखते हो, ऑब्वियसली सब देखते हैं. न्यूज चैनल्स में नीचे है ना वर्ड्स, ऑलवेज दे आर मूविंग, कुछ ना कुछ लिख के चले जाते हैं, कुछ ना कुछ लिख के चले जाते हैं. तो दिस आर नोन एज योर मूविंग e-text. Okay, are you all getting me? No talking please, Hetvi. Yes, sir. Bus enough, this is a recording session, guys. The story we shall read is set in future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. As I already mentioned, after 150 years, 200 years, what kind of studies they will be having, in what way they will be learning, then they can learn through computers or in virtual classroom, like we are studying right now. Okay, then we can have a robotic teacher, and then moving e-text. In pair, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Does not matter. आप स्कूल जाओगे, स्कूल की टीचर लिखवाएंगे. ओके, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? ऑब्वियसली अभी भी आप लोग जो कर रहे हो, ठीक है, देख रहे हो, वो क्या है? यू आर seeing the words on a computer screen. Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? देखो अभी आप सबके पास printed books है. फ्यूचर का जनरेशन ऐसा आने वाला है जब आपके बच्चे होंगे या आपके बच्चे के बच्चे होंगे, उन लोगों के पास बुक्स जैसी कुछ चीज ही नहीं होगी. उनके पास सीधा आईपैड होगा, कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, जहां पे देयर इज नो व्हाट वी से एज एनी काइंड ऑफ प्रिंटेड पेपर की जरूरत ही नहीं होगी. एवरीथिंग मस्ट बी प्रिंटेड and everything would be printed. Okay, would you like such books better? आपको डिसाइड करना है, ये वाली पढ़ाई अच्छी है
ठीक है, ऑनलाइन वाली कि ऑफलाइन वाली, ठीक है, दैट यू हैव टू डिसाइड. अगेन हेट अपने नाम से ज्वाइन कर भाई. चलो. So let's start with our chapter. There are two characters, major two characters in this chapter. One is Margie, a girl, and one is Tommy. Does not mean कि वो कुत्ता है, ठीक है, वो उसका भाई है या कजिन है या उसका दोस्त है, ठीक है. टॉमी, हाँ, he is a boy and he is elder than Margie. चलो. So Margie even wrote about it that day, sorry, that night in her diary. On the page headed 17 May 2157. अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021, राइट. उसने डायरी कब लिखी है? डायरी लिखी है उसने 17 मई, आज ही के दिन, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 2157, ठीक है. 2157 मतलब एग्जैक्टली आफ्टर, लेट्स से कि कुछ 130 साल बाद, अराउंड, ठीक है. She wrote, today Tommy found a real book. A real book means a book. जो जिसके हाथ में अगर बुक है, वो उन्होंने 2157 में पहली बार अपने हाथ में उसने क्या देखा है? She found कि टॉमी जो उसका कजिन है या दोस्त है, उसके हाथ में एक रियल बुक है. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Grandfather के grandfather ने ऐसा बताया था कि एक जमाना था कि जब सारी की सारी जो भी प्रिंटेड चीज है वो किताबों में होती थी या एक पेपर में होती थी. बराबर है, राइट. ऐसा किसने बताया? मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक जमाना हुआ करता था कि जब सारी चीज एक पेपर में लिखी जाती थी. ओके. They turned the pages. फिर उन्होंने पूरी बुक्स के पेज टर्न किए, which were yellow and crinkly. crinkly मतलब कैसे? जिसके ऊपर सब फोल्ड हो गया हो. बहुत सालों से ऐसा समझो कि कहीं पे दबी हुई बुक्स मिले तो सारे पेजेस कैसे हो जाते हैं? येलो पेजेस हो जाते हैं, और साथ साथ वो पेजेस में कुछ ना कुछ लाइनिंग्स देखने को मिलती है, कुछ फोल्ड्स भी देखने को मिलते हैं, राइट. सो crinkly. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. इसका क्या मतलब है कि मार्गी ने पहली बार, या मार्गी और टॉमी ने जो पहली बार बुक देखी है, उन्होंने बुक्स में क्या देखा कि एक तो बुक्स जो है वो येलो कलर की हो गई है, सारे जो पेपर्स है एकदम फोल्डेड है, क्रिंकली पेपर्स है, और साथ साथ उन्होंने ये एक नई चीज ऑब्जर्व की कि वो जो वर्ड्स जो है वो एक ही जगह पे है, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस जमाने में पढ़ रहे हैं वहां पे क्या होता है? वर्ड्स आर मूविंग, फ्लैश होते हैं, चले जाते हैं, नए वर्ड्स आते हैं. बुक्स में क्या होता है? एक जगह पे वर्ड्स जो है वो एक ही जगह पे रहते हैं, राइट. moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो बुक्स जब भी खोलोगे, पेज 1 पे अगर मार्गी लिखा है तो वापस आप लोग कितने भी पेजेस घुमा लो और वापस अगर पेज 1 पे आओगे तो पेज 1 पे आपको मार्गी ही मिलेगी. लेकिन उन लोगों के लिए ये एकदम ऐसा शॉकिंग लगा उन लोगों को कि हमारे जमाने में हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा है? वी हैव सीन मूविंग टेक्स्ट. एक बार टेक्स्ट चला गया, उसके बाद हम लोगों को वो चीज वापस देखने को भी नहीं मिलती है, राइट. बट दे वर शॉक्ड टू सी द बुक्स, कि द बुक्स हैव सेम पेज नंबर्स, सेम वर्ड्स, even after moving it front and back. Okay, got it? Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. Now, Tommy ने बताया बुक को देख के, शी, ये क्या, what a waste. यहाँ पे जो गी ऐसा लिखा है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, शे, क्या फालतू है, ठीक है. तो what a waste, ठीक है, ये बुक को देख के. और उन्होंने, टॉमी ने मार्गी को बताया कि अगर
तुम्हारा पढ़ के हो जाए, ठीक है, तो उसको कहीं पे फेंक देना, यू जस्ट थ्रो इट अवे। और उसने ऐसा भी बताया कि अपने टेलीविजन स्क्रीन में इससे ज्यादा बुक्स अवेलेबल है। बट मार्गी ने क्या बताया, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मार्गी ने बताया आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. Now, what do you mean by telebooks? टेलीबुक्स मतलब कि प्रिंटेड बुक्स जो कंप्यूटर स्क्रीन में स्टोर्ड होती है, उसको बोला जाता है टेलीबुक्स। तो मार्गी ने भी बोला कि मैं भी थ्रो नहीं करूंगी, ठीक है। शी वॉज 11 years old और उसने इतने टेलीबुक्स नहीं देखे जितने टॉमी ने देखे हैं, क्योंकि टॉमी वॉज 13 years old, he was 13, okay. She said, where did you find it? और फिर मार्गी ने क्वेश्चन किया टॉमी को कि ये बुक तुमको मिली कहां से, राइट। She said, sorry, in my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic, ठीक है। अब उसने पूछा कि कहां से बुक मिली, तो भाई टॉमी ने बोला शोबान। टॉमी ने बताया कि मेरे घर पे थी, एटिक पे पड़ी हुई थी, और उसने बिना उसको देखे मार्गी को ऐसे ही अपना पढ़ाई कर रहा था, और सडनली उसने आंसर दे दिया कि मेरे घर में एटिक है, वहां से मैंने फाइंड किया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एटिक? एटिक का मतलब होता है हमारे घर की बात करें तो हम लोग जिसको माड़िया बोलते हैं ना, ठीक है, एक रूफ जैसा होता है, कबर्ड के ऊपर वाली चीज, उसको हम लोग एटिक बोलते हैं। अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, ठीक है। व्हाट इज इट अबाउट? और फिर उसने क्वेश्चन किया आगे इन मार्गी ने कि ये बुक किसके बारे में लिखी गई है, ठीक है, बुक का टाइटल क्या है। सो इट वाज, टॉमी ने रिप्लाई दिया कि इट इज अबाउट स्कूल, द बुक इज रिटन अबाउट व्हाट, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है वेरी वर्थलेस फीलिंग होना। स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिखता है, लाइक दैट। उसका जो चेहरा था पूरा वो ऐसा एकदम वर्थलेस हो गया कि भाई कौन है जो स्कूल के बारे में लिखता है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, ठीक है। तो उसने बताया कि मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं है, ठीक है, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। अब देखो, अपनी स्कूल और उनकी स्कूल में देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। इसीलिए मार्गी को लगता है कि स्कूल के बारे में लिखना इज अ वेस्टेज ऑफ थिंग। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent it for the county inspector. Now ध्यान से देखना, ये पूरा जो पैराग्राफ है वो एक्सप्लेन करता है कि मार्गी को स्कूल पसंद ही नहीं है, और जैसे जैसे उसके मैकेनिकल टीचर मतलब कोई मैकेनिकल इंजीनियर आके टीचर नहीं पढ़ाने बैठता। मैकेनिकल टीचर मींस एनी डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपॉड हो गया, आईपैड हो गया, ठीक है, वहां से उसको ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़ती है। वो ऑनलाइन एग्जाम देती रहती है, और ज्योग्राफी की एग्जाम में वो जितनी एग्जाम देती है उसका जो रिजल्ट है इट बिकम्स वर्स एंड वर्स एंड वर्स, ओके। मतलब बेकार होता जा रहा है, जितनी उसने अपग्रेडेड एग्जाम दी उतना उसका जो काम है वो मतलब उसका बेकार होता गया पढ़ाई। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। किसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा? जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसको, ठीक है, द बॉक्स या कंप्यूटर, उसको जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है, काउंटी इंस्पेक्टर मींस द रिपेयरर, ओके, जो उसको रिपेयर करता है उसको काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, ओके। नाउ he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो वो भाई साहब आए, काउंटी इंस्पेक्टर भाई साहब आए, और उसके जो फेस था वो रेड फेस था, थोड़ा राउंड उसका मुंह था, एंड उसके पास क्या होता है, जनरली कंप्यूटर रिपेयरर सब कुछ अपने गैजेट्स वगैरह सब कुछ लेके आते हैं, तो वो सब गैजेट्स वगैरह जो है वो लेके आया था। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. टुक द टीचर अपार्ट मतलब अगर मेरे में कुछ खराबी है तो मुझे रिपेयर करना पड़ेगा ना,
ठीक है, वैसा ही मतलब मुझे रिपेयर नहीं कर सकते, मैं इंसान हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या है, उन लोगों का तो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है। तो मार्गी का जो मतलब जो भी रिपेयरर आया था उसको एप्पल दिया और टीचर को लेके रिपेयर करने बैठ गया। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how, all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. ठीक है, तो मार्गी को ऐसा लगा कि काश ये जो इंस्पेक्टर या इंजीनियर आया है वो थोड़ा बुद्धू हो, ठीक है, और उसका कंप्यूटर ठीक ना हो पाए ताकि उसको 3-4 दिन तक आराम से पढ़ाई नहीं करनी पड़े, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, उसने तो एक ही घंटे में उसको रिपेयर करके वापस जैसा था वैसा उसने रख दिया, ठीक है। और कैसा दिखता था वो उनका कंप्यूटर टीचर या मैकेनिकल टीचर? इट वाज लार्ज, ब्लैक एंड अगली। अगली का मतलब नॉट वेरी गुड लुकिंग, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked, ठीक है। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अब देखो, लास्ट ईयर मैंने ऐसा ट्राई किया था, there is an application named Google Classroom, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम में एक स्लॉट होता है जिसमें आप लोगों को होमवर्क आपका सेंड करना होता है, ठीक है, ऐसा फाइल अपलोड करते हैं ना हम लोग, वैसा ही। सो देयर वाज अ स्लॉट। उस मार्गी को क्या पसंद नहीं था, मार्गी को कोई भी चीज होमवर्क दे वगैरह ऐसा वो अपलोड करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। स्लॉट का मतलब होता है कोई भी जगह, ठीक है, एनी स्पेस। एंड टेस्ट पेपर्स। अब आप लोग क्या करते हो, अभी अभी ऑनलाइन सेशंस चलते हैं हमारे, तो ऑनलाइन सेशंस में आप लोग होमवर्क पीडीएफ के फॉर्म में हमको भेजते हो, तो पीडीएफ फाइल आप लोग व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हो, अपलोड, ठीक है, इन द गिवन स्लॉट। सेम थिंग इट वाज हैपनिंग। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. Now punch code, अब देखो हर एक चीज कंप्यूटर पे लिखनी है, हर एक चीज, ठीक है, पूरे पूरे वर्ड्स तो नहीं लिखे जाएंगे, तो उनके कुछ कोडिंग्स होते हैं, वो कोडिंग्स उनको 6 इयर्स की एज पे ही उसको सिखा दिए गए थे, और वो ही कोडिंग्स में उसको सारा का सारा चीज लिखना था। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और सब कुछ वो कैलकुलेट करके विद इन नो टाइम उसको रिजल्ट मिल जाता था, ठीक है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. Patted Margie's head मतलब ऐसा करना, पैट करना, ठीक है। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." तो Margie's mother's name is Mrs. Jones. I think geography sector was geared a little too quick, ठीक है। तो उसने क्या बताया इंस्पेक्टर ने या रिपेयरर ने कि इसमें लड़की का कोई गलती नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, सेक्शन था, उसकी एज से थोड़ा ज्यादा बड़े एज का। अब मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूँ, 9th स्टैंडर्ड में हो और 12th स्टैंडर्ड की बात करने लगू तो आप लोगों को कैसा जाएगा, सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, राइट। द सेम थिंग हैड हैपेंड टू हर, ठीक है। उसका जो लेवल था उसके लेवल से ऊपर वाले लेवल में उसका हो गया था, ठीक है, ज्योग्राफिक सेक्टर। इसके लिए उसके जो मार्क्स है वो क्या आते थे, हमेशा पुअर आते थे। I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. तो उसने बताया कि मैंने वापस जो ज्योग्राफी का सेक्टर है उसको 10-year लेवल के जो भी बच्चे हैं वहां तक सेट कर दिया है, सो दैट, और बाकी का उसने प्रोग्रेस देखा डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, वो एकदम सेटिस्फैक्टरी था। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. ठीक है, तो उसको ऐसा लगा कि मेरा भी चला जाएगा कंप्यूटर, 1 महीने तक मुझे भी आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन टॉमी जो उसका कजिन था या दोस्त था, ठीक है, उसका क्या हुआ था, एक बार पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो सेक्टर होता है, जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में बहुत सारी चीज रखते हैं, ठीक है, लेकिन बाय चांस एक डिलीट बटन दबा दिया हो हम लोगों ने, तो पूरा का पूरा जो चीज होता है वो चला जाता है। रिसाइकल बिन में से भी उड़ा दिया तो क्या होगा,
तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा ना कि भाई ये वापस हमको करके दो। तो वैसा ही टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी का एक पूरा हिस्ट्री सेक्टर चला गया था, तो 1 महीने तक उसकी जो स्कूल थी वो बंद रह गई थी, ठीक है। तो उसको ऐसा था मार्गी को कि मेरा भी काश ऐसा हो सकता। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो टॉमी को उसने पूछा कि भाई कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अब ये जो स्कूल है ना, ठीक है, now they are discussing about the book they found, okay. टॉमी looked at her with very superior eyes. Superior eyes का मतलब क्या होता है? देखो, आप सबके बड़े भाई या बहन होंगे, ठीक है, तो बड़े भाई ऐसा देखते हैं ना, तेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को तेरे से ज्यादा आता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो सेम थिंग टॉमी ने भी उसको ऐसा ही बताया। उसने थोड़ी ऐसे अपनी आइज को सुपीरियर की कि वो स्कूल अपनी स्कूल जैसी स्कूल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, this is the old kind of school and they had hundreds and hundreds of years ago. तो उसने समझाया कि भाई अपने जैसी स्कूल नहीं है, ठीक है। वो जेठालाल बोलते हैं ना, ए पागल औरत, ऐसा बोलते हैं ना दया को, वैसा ही, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो स्कूल जो है वो 100 अगो पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टीली अगेन, अपने आप को सुपीरियर बताना, ठीक है, बड़ा समझना। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, ऐसा हम लोग कभी कभी ऐसे किसी को बोलते हैं ना डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ, सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज मींस हंड्रेड्स 200 ईयर पहले की बातें हैं। मार्गी वाज हर्ट, उसको थोड़ा ऐसा दुख हुआ कि मेरे भाई ने मेरे थोड़ा ऐसा वो किया। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. और फिर उसने थोड़ी देर पढ़ी बुक, और फिर उसमें एक टॉपिक आया टीचर, ठीक है। तो उसने ऐसा बताया कि they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not regular teacher, it was a man. अब टॉमी क्या बोलता है, हाँ उनके पास टीचर थे, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं है। अब उनके जमाने के रेगुलर टीचर मतलब कंप्यूटर, और हमारे जमाने के टीचर मतलब कि मैं इंसान, ठीक है। रेगुलर यहाँ पे नॉर्मल होता है, ठीक है। इट वॉज अ मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग। मैन का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी लोग ही पढ़ा सकते, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग ओवर हियर, ओके। well, sorry, a man, how could a man be a teacher? फिर वापस मार्गी अगेन क्वेश्चनिंग हिज ब्रदर, कोई इंसान टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. जैसे मैं आप लोगों को देता हूँ, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है टॉमी, ठीक है, कि उस जमाने के जो टीचर्स थे, वो टीचर्स कैसे थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, वो सबको होमवर्क्स देते थे, सबको क्वेश्चंस करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मार्गी ऐसा बोलता है, मैन इतने स्मार्ट नहीं होते हैं जितने कंप्यूटर स्मार्ट होते हैं। तो व्हाट डिड टॉमी सेड, श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, ठीक है। तो फिर क्या बताया, ठीक है, उसने कि मेरे पापा को भी उतना ही मालूम है जितना कि अपने कंप्यूटर टीचर को, ठीक है। Margie was not prepared to dispute, sorry, he knows almost as much, I bet. बैच मीन्स बैट लगाना, ठीक है। उसने ऐसा बताया कि मेरे पापा को भी इतना ही पता है जितने मैकेनिकल टीचर को या कंप्यूटर को, ठीक है। आई कैन बेट यू, ऐसा बोलते हैं ना, शर्त लगाते हैं। So Margie was not prepared to dispute that. Dispute का मतलब होता है झगड़ा करने के या आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नहीं थी। She said, I would not want a strange man in my house to teach me. और फिर मार्गी ने वापस ऐसा बताया कि मैं अपने घर में किसी भी अनजान आदमी को आने से रोकूंगी, मैं अपने घर में किसी भी अनजान आदमी से नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर अगेन, ऐसा उसने जोर से हंसने की कोशिश की, ठीक है, कि भाई क्या बोल रही है, ठीक है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। और फिर टॉमी ने वापस उसको एक्सप्लेन किया कि वहां पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहां पे उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, ठीक है। और फिर क्वेश्चन पूछा कि क्या सब बच्चे सेम चीज सीखते हैं।
तो यस इफ दे वर ऑफ द सेम एज, श्योर इफ दे वर द सेम एज, और उन्होंने बताया कि हाँ सब कुछ सेम पढ़ते हैं अगर सेम एज के होते हैं. But my mother says teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. और फिर उसकी मम्मी ने उसको बताया था कि हर एक बच्चे की मेंटालिटी अलग अलग होती है, हर एक बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है, और वो बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो वो डिफरेंटली, वो सर या ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है. Just the same they did not do it that way then. If you don't like it you don't have to read the book. और फिर इसने ऐसा बोला कि हाँ भाई पहले के जमाने में ऐसा ही था, ठीक है, अगर बुक पसंद नहीं है तो मुझे वापस दे दो. If you don't, sorry, I did not say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie school, ठीक है. तो उन लोग का डिस्कशन चल रहा था कि नहीं अगर तुमको बुक नहीं पढ़नी है तो वापस दे दो. तो मार्गी ने बोला नहीं मैं वापस नहीं करूंगी. और उन लोग का डिस्कशन अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि उसमें मार्गी की मम्मी ने क्या बताया, चलो बेटा स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप मतलब वॉच की तरफ देखा. नॉट येट मम्मा, ठीक है, उसने बोला कि अभी टाइम नहीं हुआ है. जैसे आप लोगों की मम्मी बोल देती है चलो भाई 3:45 हो गए, संकेत सर का क्लास स्टार्ट होने वाला है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसा. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और फिर मिसेस जोन्स ने बोला अभी के अभी, और टॉमी का भी टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर टाइम विथ यू आफ्टर स्कूल. तो उसने बोला कि भाई स्कूल के बाद क्या मैं ये बुक आपके साथ पढ़ सकती हूँ. Maybe he said nonchalantly. Nonchalantly का मतलब है without any interest. उसने बोल दिया कि हाँ चलो पढ़ सकती हो. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. ठीक है, तो उसने बुक को ली, डस्टी थी क्योंकि बहुत सालों के बाद मिली थी, अपने ऐसे बेनेथ के अंदर ऐसे रख दिया और फिर चलता बना. ठीक है. Margie went into the school room. It was next to her bedroom and the mechanical teacher was on waiting for her. It was always on same time every day except Saturday and Sunday. ठीक है, तो जैसी अपनी अभी सिचुएशन है ना, आप फ्रंट रूम से अपने बेडरूम में आ जाते हो तो ये आपका स्कूल हो गया. ठीक है, सेम थिंग हैज हैपेंड. और जैसे ही वो लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, उनके जो मैकेनिकल टीचर्स है दे आर ऑन टाइम एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. जैसे अपने क्लासेस में है सैटरडे संडे क्या होता है, एग्जाम होती है. ठीक है, जस्ट लाइक दैट. देन sorry, because her mother said little girls learn better if they, sorry, कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया, नहीं बराबर है. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. तो उसकी मम्मी ऐसा बोलती है कि अगर बच्चे रेगुलर टाइम पे पढ़ेंगे then they will be teaching या they will be taught perfectly. The screen was lit up and it says today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. और जैसे ही उसने कंप्यूटर या कुछ स्टार्ट किया, तुरंत फ्लैश मैसेज आया कि आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज अबाउट एडिंग द फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस पता है ना, 1/2 + 2/5, उसको हम लोग फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो 1/2 + 2/5 को आपको ऐड करना है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट. और तब तक वो आगे स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो होमवर्क सेंड नहीं करेगी या अपलोड नहीं करेगी. ओके, इन प्रॉपर स्लॉट. मार्गी डिड विथ अ साई. और साई का मतलब क्या होता है, बड़े दुख बड़े, उसमें उसने चलो हाँ ठीक है भेज देते हैं. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. और शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल मतलब अपने जमाने के स्कूल की बात. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. So she was thinking of our time school कि कब सब बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, स्कूल में एक साथ बैठना, सब टिफिन बॉक्स लंच बॉक्स सब कुछ एक साथ खाना पीना और होमवर्क सब डिस्कस करके फिर वापस सबको एक साथ घर पे चले जाना. And the main thing, teachers were people. People means human beings. The teachers were human beings. The mechanical teacher was flashing on the screen.
when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. So जब तक वो ऐसा सोच रही थी, मैकेनिकल टीचर ने फ्लैश कर दिया कि what will be the answer of 1 by 2 plus 1 by 4. Okay, and Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और फिर मार्गी जो है उसने क्या किया, वो पुराने जमाने का जो अपने जमाने के स्कूल है उसके बारे में सोचने लगी कि उस जमाने के बच्चे कितना फन करते थे. ओके, सो दैट्स इट बच्चों, ये था अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर व्हाट वी से